Assalamu alaikum. My name is Dr. Samia Jamil. Today we will talk about 25 question answers about the basic knowledge of gynae you should know at the first day of your gynae ward. So let's start. Our first question is what is the median duration of pregnancy? अगर हम दिनों में बात करें तो ये 280 डेज़ होता है और अगर वीक्स में बात करें तो 40 वीक्स होता है. 38 to 40 वीक्स हम एवरेज काउंट करते हैं कि इतना ड्यूरेशन होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में. Second question is duration of precocious puberty. What is the precocious puberty? It is the onset of puberty before the age of 8 years in girls and 9 years in boys. Third one is phases of menstrual cycle. There are 3 phases of ovulatory cycle. There is a mnemonic that's called FOL or FOOL. Follicular phase, ovulation phase and the luteal phase. These are 3 phases of ovulatory cycle. Then phases of endometrial changes during menstruation. These are 3 stages: proliferative phase, secretory phase, menstruation phase. What is amenorrhea? It is the absence of menstruation for more than 6 months in the absence of pregnancy in a woman of fertile age. More than 6 months. What is the primary amenorrhea and secondary amenorrhea? Primary amenorrhea is when girls fail to menstruate by the age of 16 years. Secondary amenorrhea is the absence of menstruation for more than 6 months in a normal female of reproductive age that is not due to the pregnancy, lactation or menopause. मतलब प्राइमरी एमेनोरिया में कभी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है लेकिन बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से फर्दर 6 मंथ के लिए वो मेंस्ट्रुएट नहीं करती. व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? डिस्मेनोरिया इज़ द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. व्हाट इज़ मिसकैरेज? Miscarriage is a pregnancy that ends spontaneously before 24 week of gestation. Now it is important कि अगर miscarriage होगा तो वो लेस दैन 24 वीक की प्रेगनेंसी होगी, लेकिन अगर आपको वो पूछेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या है तो वो होगा लेस दैन 37 वीक पे अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसे हम कहेंगे ये प्री टर्म लेबर है. ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए और इनका डिफरेंस भी कि 24 वीक से पहले जो भी होगा वो मिसकैरेज होगा. आगे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मिसकैरेज? देयर आर 5 टाइप ऑफ मिसकैरेज: थ्रेटन्ड मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज, inevitable miscarriage, incomplete miscarriage and complete miscarriage. What is the heavy menstrual bleeding? Heavy menstrual bleeding is defined as the blood loss of greater than 80 ml per period. 80 ml per period से ज़्यादा blood loss is the heavy menstrual bleeding. What is the booking visit? When a woman becomes pregnant, one of the first interaction with the health service is known as booking visit. मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसका फर्स्ट बुक सेशन होगा या इंटरेक्शन होगा विद डॉक्टर उसे हम बुकिंग विजिट कहते हैं. व्हाट इज़ द एनीमिया इन प्रेगनेंसी? एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज द हीमोग्लोबिन लेस दैन 110 ग्राम पर लीटर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लेस दैन 105 ग्राम पर लीटर इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर एंड देन लेस दैन 100 ग्राम पर लीटर postpartum period. Beating of fetal heart can be visualized by the 6th week of pregnancy. What is the cardiotocography or CTG? The cardiotocography is the continuous traction of a fetal heart rate is used to assess the fetal well-being. मतलब अब इसमें हम fetal hearts देखते हैं fetal well-being को देखने के लिए. ये हमें baseline heart rate बताती है, baseline variability देती है, acceleration देती है और deceleration देती है. What is the normal baseline fetal heart rate? Normal fetal heart rate at term is 110 to 150 beat per minute. ये हमारे पास नॉर्मल होता है 110 to 150 beat per minute. The commonest organism for UTI is E. coli. It's very important. What is the preterm labor? It is the onset of labor before 37 week of gestation. पहले हमने पढ़ा मिसकैरेज 24 से 36 वीक्स के दरमियान अगर
लेबर हो जाती है तो इसे हम कहेंगे प्री टर्म लेबर। और अगर फॉर एग्जांपल 24 वीक से पहले प्रेगनेंसी एंड हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं मिसकैरेज। What is preeclampsia? It is defined as the hypertension at least 140 by 90 mmHg और इसके साथ हमें एटलीस्ट 300 मिलीग्राम प्रोटीन मिले इन 24 और यूनिकोलेक्शन में। राइजिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वोमेन और ये डिज़ोल्व हो जाए आफ्टर द 6 पोस्टपार्टम वीक। मतलब 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि हाइपरटेंशन इतनी होनी चाहिए 140/90 और 300 मिलीग्राम प्रोटीन होने चाहिए यूरिन सैंपल में और ये 6 वीक के बाद रिजॉल्व कर जाए। व्हाट इज़ एक्लैम्पशिया? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन्स। ये कन्वल्जन आना यहाँ पे इन अ वोमेन विद द प्री एक्लैम्पशिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइबल कॉज। मतलब उसमें जो है टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन्स मतलब उसका कोई और कॉज ना हो, हमारे पास जस्ट प्रेगनेंसी हो तो इसे हम कहते हैं कि एक्लैम्पशिया हो गया, साथ में हाइपरटेंशन हो तो। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। फीटल एनोमली स्कैन कैन बी डन एट, इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। किसी बुक में 18 to 20 वीक्स लिखा हुआ है, किसी बुक में 19 to 22 वीक्स लिखा हुआ है, तो मैंने उनका एवरेज 18 to 22 वीक्स लिखा है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर? इसका अब हमारे पास एक निमोनिक होता है ई डिफाइड। ई से एंगेजमेंट होता है, डी से डिसेंट होता है, एफ से फ्लेक्शन होता है, आई से इंटरनल रोटेशन होता है, ई से एक्सटेंशन होता है, आर से रेस्टिट्यूशन होता है, ई से एक्सटर्नल रोटेशन होता है और डी से होता है लास्ट पे डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड फीटल बॉडी। व्हाट इज़ एपिजियोटमी? It is a surgical incision of the perineum performed during the second stage of labor to enlarge the vulval opening। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये हम देते कब है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। What is postpartum hemorrhage? Defined as a blood loss of more than 500 ml। अगर more than 500 ml blood loss हो गया हम कहेंगे कि जी postpartum hemorrhage हो रहा है। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी postpartum hemorrhage, ये है लॉस ऑफ 500 ml और 1000 ml इन द फर्स्ट 24 और फॉलोइंग बर्थ। मतलब पहले 24 घंटों में अगर ब्लड लॉस इससे ज़्यादा हो तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी postpartum। और सेकेंडरी postpartum होता है कि हेमरेज हो जाए या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो 24 और के बाद से लेके अप टू 6 वीक तक, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। व्हाट इज़ द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? PMS जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। इट इज़ द अकरेंस ऑफ साइक्लिकल सोमैटिक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स दैट अकर इन द ल्यूट्रियल और प्री मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिजॉल्व बाय द टाइम मेंस्ट्रुएशन सीजेस। अब ये हमारे पास जो 1 वीक बिफोर होता है मेंस्ट्रुएशन उसमें स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ लेबर? लेबर इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड सिग्नल फॉर द लैक्टेशन टू बिगिन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लेबर? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यह ऑनसेट ऑफ लेबर से लेके कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन तक होती है। सेकेंड स्टेज कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके बर्थ ऑफ बेबी भी तक होती है। और थर्ड स्टेज फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन तक होती है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।